Welcome all. Today we can see the Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation is the keynote of wave mechanics and is based upon the idea of electron as standing wave around the nucleus. Schrodinger wave equation is the keynote of wave mechanics and is based upon the idea of electron as standing wave around the nucleus. The equation for stationary wave comparable with that of a stretched string is given as, we know this equation. This is the equation for stationary wave comparable with that of the stretched string, and this is the name of psi. This symbol is nothing but psi. Psi is equal to a sine 2 pi mu into x. Psi is equal to a sine 2 pi mu into x. This is equation 1. This is the this equation is for the stationary wave comparable with that of a stretched string. This number psi is equal to a sine 2 pi, the symbol mu into x. We can differentiate this equation 1 with respect to x. So if we differentiate this equation, psi is equal to a sine 2 pi mu into x with respect to x, then what happens? D psi upon dx is equal to the differentiation of sine 2 pi mu x is nothing but cos 2 pi mu x. Okay, if we differentiate this equation, psi is equal to a sine 2 pi into mu x, तो इसका differentiation क्या हो जाता है? We can differentiate this equation with respect to x. Differentiating equation 1 with respect to x, so we can get here d psi upon dx. a sin 2 pi mu x का डिफरेंशिएशन होता है a cos 2 pi mu x into this base of x is nothing but 2 pi mu, therefore into 2 pi mu. ठीक है, this equation number 2. We can again differentiate this equation number 2 with respect to x. So differentiation of d psi upon dx is nothing but d square psi upon dx square. Differentiation of d psi upon dx is nothing but d square psi upon dx square. And the differentiation of this a cos 2 pi mu into x is nothing but minus a sin 2 pi mu into x. And this x जो है इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2 pi mu into 2 pi mu. So this 2 pi mu and this 2 pi mu is nothing but 4 pi square mu square. तो दिस इक्वेशन 2 जो है उसको अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x, so we can get here d square psi upon dx square is equal to a cos 2 pi mu x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a sin 2 pi mu x. तो a sin माइनस a sin 2 pi mu x होता है on this 2 pi mu, और ये 2 pi mu ये क्या हो जाता है? 4 pi square mu square. From equation 1 we have, equation 1 क्या है? देखो इक्वेशन 1 था psi is equal to a sin 2 pi mu x. psi is equal to a sin 2 pi mu x. तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है a sin 2 pi mu x, तो इसके बजाय क्या करना है? आपको psi रख देना है. ठीक है, because from equation 1 we know that from equation 1 psi is equal to a sin 2 pi mu x. तो ये जो इक्वेशन है इसमें अगर आप इसको रिप्लेस करके psi रख देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? d square psi upon dx square is equal to minus 4 pi square mu square, and this of a sin 2 pi mu x यानी कि क्या रहता है? psi रहता है, इसलिए here into psi. So this equation 2 becomes d square psi upon dx square is equal to minus 4 square minus 4 pi square mu square into psi. But we know that psi, but we know that mu is equal to 1 upon lambda.
म्यू यानी कि क्या रहता है, ये जो म्यू है इट इज नथिंग बट 1 अपॉन लैम्बडा है, तो रहता है 1 अपॉन वेवलेंथ। तो इन दिस इक्वेशन 1 हियर इज म्यू स्क्वायर, तो दिस इक्वेशन 3 बिकम्स, ये जो इक्वेशन है इसको आप कैसे लिखेंगे, instead of this mu square we can put 1 upon lambda square, because mu is equal to 1 upon lambda, तो mu square is equal to क्या हो जाएगा 1 square upon lambda square, 1 square 1 आता है और lambda square, तो इसलिए यहाँ पर जो mu square है उसके वजह आपको लिखना है lambda square 1 upon lambda square। तो this equation becomes d square psi upon dx square is equal to minus 4 square minus 4 pi square upon lambda square into psi। ये हो गया इक्वेशन 3। अंडरस्टैंड, समझ में आया क्या? म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा है, इसलिए यहाँ पर जो म्यू स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू होने वाली है 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर होने वाली है। तो इंस्टेड ऑफ दिस म्यू स्क्वायर वी कैन पुट 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर and we can get this equation number 3। but according to de Broglie, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोली, ये इक्वेशन आपको होगा डी ब्रोलीज इक्वेशन। डी ब्रोलीज अकॉर्डिंग टू डी ब्रोली लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv, लैम्बडा इज इक्वल टू रहता है h अपॉन mv रहता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस इक्वेशन इन इक्वेशन इफ यू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, अगर आप लैम्बडा की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देते हैं तो क्या होने वाला है यहाँ पर, here is d square psi upon dx square is equal to minus 4 pi square upon, यहाँ पर लैम्बडा स्क्वायर है तो लैम्बडा स्क्वायर के बजाय क्या रखने आपको, दिस लैम्बडा इज नथिंग बट h upon mv। अंडरस्टैंड, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोली इफ लैम्बडा इज इक्वल टू h upon mv then lambda square is equal to what, अगर आप lambda square करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है h square upon m square v square। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन 3 में, यहाँ पर जो इक्वेशन 3 में, हाँ दिस इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में नीचे है लैम्बडा स्क्वायर, तो वी कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, lambda according to de Broglie lambda is nothing but lambda is equal to h upon mv, तो lambda square क्या हो जाएगा h square upon m square v square, तो we can put this value here। ठीक है, h square upon m square v square into psi, we can rearrange this equation। अब ये जो इक्वेशन इसको आपको रीअरेंज करना है, तो ये d square psi upon dx square as it is no change is equal to minus 4 pi square अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाता है, ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई, तो दिस माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, एंड जस्ट वी कैन गेट हियर माइनस 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई। So we can just rearrange this equation number and we can get this equation number 4. Understand? But the total energy can be given as E is equal to total energy is denoted by the symbol E. तो E is equal to kinetic energy plus potential energy। ये सबको पता है कि टोटल एनर्जी बराबर क्या रहता है, it is nothing but sum of kinetic energy and potential energy। We can write the same, E is equal to kinetic energy plus potential energy। Kinetic energy is nothing but 1/2 mv square, so this E is equal to 1/2 mv square plus potential energy, I can write here PE, PE means potential energy। I can rearrange this equation, 1/2 mv square is equal to, इसके अगर आप साइड चेंज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगा, E minus PE, तो 1/2 m square is equal to E minus PE, P यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाइंग बाय m। ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये जो इक्वेशन है यहाँ पर है 1/2, अगर ये 2 जो है ये डिवाइड पोजीशन में है, साइड चेंज करने के बाद में क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप m से मल्टीप्लाई करेंगे
तो दिस यम और ये यम क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट दिस ई माइनस पीई। ई यानी कि टोटल एनर्जी है और पी यानी कि क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी। और ये दो कहाँ से आ गए हैं, ये 1/2 था, इसके अपन ने साइड चेंज कर दिए तो इधर 2 आ गया। और यम, ये जो इक्वेशन है इसको यम से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर यम आ गया है। अंडरस्टैंड? ये जो इक्वेशन है 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस पीई, इसको मल्टीप्लाई किया है यम से। ठीक है, ये इक्वेशन को यम से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। तो क्या हो जाता है, यम इंटू यम, यम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट ई माइनस पीई। तो ये 1/2, इसके अगर आप साइड चेंज कर देते हैं तो इधर आने के बाद में 2 जो है ऊपर आ जाता है। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, अब ये जो वैल्यू है यम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई माइनस पीई, ये वैल्यू को क्या करना है आपको, इक्वेशन 4 जो है, ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर 4, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर यम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई। तो यहाँ पर जो यम स्क्वायर वी स्क्वायर है इक्वेशन 4 में, वहां पर आपको क्या करना है, ये वैल्यू रखना है 2m e माइनस पीई। अंडरस्टैंड? तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एज इट इज। और जहां पर यम स्क्वायर वी स्क्वायर था वहां पर रख दिए अपने 2m e माइनस पीई इंटू साई। ठीक है, इट्स जस्ट सिंपल। अब यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, 4 इंटू 2 कितना होने वाला है, 8, 4 इंटू 2 8। तो ये जो इक्वेशन है इसको आप क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो वही मैं राइट हियर डो स्क्वायर साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 8, 8 पाई स्क्वायर यम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस पीई इंटू साई। ठीक है, ई माइनस पीई इंटू साइन। 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो गया। तो दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखे थे पहले उसमें उसको खाली सिंप्लीफाई कर दिए है। ठीक है, तो इन दिस इक्वेशन व्हाट हैपेंस, 4 इंटू 2 यानी कि 8, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस पीई इंटू साइन। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर भी, डो स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस पीई इंटू साई। अब ये माइनस है, इसके अगर अपन साइड चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डो स्क्वायर साई या डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बिकम्स प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस पीई into psi is equal to 0. This equation number 5, and this is Schrödinger equation in one dimension. ये जो इक्वेशन 5 है इसको क्या कहते हैं, Schrödinger equation in one dimension. Schrödinger equation in one dimension. हाँ, अभी अगर 3 डायमेंशन में आपको अगर लिखना है, ठीक है, ये था 1 डायमेंशन में यानी कि ओनली फॉर x। अगर आप 3 डायमेंशन में ये इक्वेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा फिर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस आगे का इक्वेशन एज इट इज 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस पीई इंटू साई इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज Schrödinger इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन। ये जो इक्वेशन है इसको क्या कहते हैं, Schrödinger इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पर x, y एंड z ना तीनों भी एक्सिस आते हैं और इसलिए इसको कहते हैं Schrödinger इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशंस। डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस पी इंटू साई इज इक्वल टू 0। दिस इज Schrödinger इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशंस। तो द फर्स्ट 3 टर्म्स, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है 1, 2 and 3, on the left hand side these 3 terms are replaced by
डेल स्क्वायर साई, ये जो सिंबल इसको कहते हैं डेल, दिस सिंबल इज नथिंग बट डेल, डेल स्क्वायर साई। ठीक है, तो ये जो थ्री टर्म्स है इसके बजाय क्या रखना है आपको, डेल स्क्वायर साई रखना है। बाकी आगे का जो इक्वेशन एज इट इज, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस पीई इंटू साई इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो दी स्क्वायर इक्वेशन, ये भी स्क्वायर इक्वेशन है। Here del square is nothing but the Laplacian operator, Laplacian operator रहता है del square। और बाकी आपको पता है m is nothing but the mass, h is Planck constant, e यानी कि क्या है, एनर्जी, टोटल एनर्जी, pe यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। है, तो ये इक्वेशन आपको आता है, दिस इक्वेशन फॉर 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के लिए आएंगे आपको, द क्वेश्चन विल बी derive Schrodinger equation or give the derivation of Schrodinger equation। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन जो है is the keynote of wave mechanics, understand, and is based upon the idea of the electron as standing wave around the nucleus। As we know that the electron is revolving around the nucleus, है ना, ये सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है रहता है, it is revolving around the nucleus and it is having the dual nature, one nature is the wave nature and other nature is the particle nature। And the equation for a stationary wave comparable with that of a stretched string, this equation is known to you, equation of stationary wave or standing wave is nothing but psi is equal to a sin 2 pi mu into x रहता है। ठीक है, दिस सिंबल इज नथिंग बट म्यू, तो साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई म्यू टू एक्स। इसको क्या करना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इक्वेशन एक्स को, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करने का, तो ये क्या हो जाएगा, डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अभी सबको पता है ए साइन 2 पाई म्यू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए कॉस 2 पाई म्यू एक्स इंटू 2 पाई म्यू, तो उसको ऐसा लिखा है। ठीक है, ए कॉस 2 पाई म्यू एक्स, आगे लिखने के बजाय 2 पाई म्यू लिखने के बजाय पहले लिया है 2 पाई म्यू। अब ये जो इक्वेशन 1 है इसका और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आप। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या होता है फिर इसका डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और a cos 2 पाई म्यू x का डिफरेंशिएशन होता है a sin माइनस a sin 2 पाई म्यू x, यहाँ पर माइनस साइन इसलिए है, और इनटू 2 पाई म्यू x 2 पाई म्यू, तो 2 पाई म्यू इंटू 2 पाई म्यू क्या होगा फिर 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर। बट वी नो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 क्या कहता है, साई इज इक्वल टू a sin 2 पाई म्यू x, तो यहाँ पर ये जो a sin 2 पाई म्यू x है उसके बजाय साई रख दिया है। ठीक है, अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ में आ गया। बट दिस म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, लेकिन म्यू बराबर क्या है, 1 अपॉन लैम्डा है, तो म्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फिर 1 स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 रहता है और लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो म्यू स्क्वायर है उसके बजाय 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर रख दिया है। बाकी इक्वेशन एज इट इज है, dou square psi upon dou x square is equal to minus 4 pi square upon lambda square into psi, equation number 3। okay, but according to de Broglie, इसके पहले लेक्चर में हो गया है de Broglie का, de Broglie's इक्वेशन, de Broglie's हाइपोथेसिस। तो अकॉर्डिंग टू de Broglie क्या कहता है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे फिर, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर। तो इक्वेशन 3 में जहां पर लैम्डा स्क्वायर था, इक्वेशन 3 में यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर था, तो इसके बजाय आपको क्या करने का फिर, यू हैव टू पुट h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर, लेकिन ये माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर v स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लीकेशन होके ऊपर आ जाता है, तो इसलिए ये इक्वेशन हो गया है आपका माइनस 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर ऊपर आ गया है इंटू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू साई, दिस इक्वेशन नथिंग बट इक्वेशन नंबर 4। ओके,